Now, we have talked about a lot of things, a plethora of things in the past chapters. Today, we are going to study about different types of livelihoods. What is migration? We are going to study about education. We're going to study about different type of houses, communities, clothing, languages, different festivals, and how everybody is interdependent on each other. Now, if you see, when you go around, what all do you find? You find a post office, park, library, grocery store, school, community center, street sign, fire station, police station. Now you have to take down. So if you just go out, what all do you find around in your neighborhood? You just have to find that yourself. So what is a neighborhood? A neighborhood is a localized community that exists within a larger city, town, or district. And what all are there in the neighborhood? Let's study that. It serves as a social hub for people to interact with one another face to face, fostering a sense of community among its members. So when we are living in a neighborhood, what is majorly important is our safety. It is very crucial aspects, and the residents should feel secure enough to move around at any time of the day. Living in a safe community can elevate anxiety. Anxiety को कम करता है और हमारा comfort और security promote करता है. हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास कौन लोग रह रहे हैं. जब ऐसा होता है तो हमें लगता है कि हम एक फैमिली हैं, राइट. उसके अलावा एक सेफ नेबरहुड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब आप सपोज आप एक नई जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके आसपास लोग कैसे हैं, सो दैट यू फील सेफ एंड सिक्योर. Being kind and helpful to one's neighbor is vital aspects of building a strong community. So that is why, whenever there are special days, we call them to our houses. We spend special days together. Over time, treating one's neighbor as family can help foster a sense of belonging and promote a more cohesive and supportive community. तारक मेहता सारे बच्चे देखते हैं ना. What do we see in that? All the people, they as a community, one community, they live together, they're safe, happy, they spend time together, and they feel good about it. Now, neighborhoods, they may vary in size, demographics, culture, and amenities. India has a diverse population distribution with a significant portion residing in rural areas and rapidly urban population. तो इंडिया में हम कितना भी अभी भी हमने बहुत एक्सप्लोर करा है, बहुत बड़े हैं हम अपने आगे. बट अगर हम बात करें तो 69% of country's population is still living in rural areas, while 31% is living in urban areas. Now just imagine 69% is still living in rural areas, that is villages. India has also experienced significant urbanization with a growing number of people moving to cities and towns in search of better economic opportunities and improved living standards. अब लोग विलेजेस से सिटीज की तरफ क्यों मूव करते हैं? बिकॉज उन्हें पता है कि वहां जाके उनके फाइनेंशियल्स जो है वो बढ़ जाएंगे, उसके अलावा उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा. So broadly, the way we can divide Indian society into urban and rural, and this is what we are going to discuss here. So building a strong community involves being kind, compassionate, helpful to the neighbors, treating them like family, and contributing to a more supportive living environment. Now we are going to study about livelihood. Livelihood क्या होता है? कोई भी पैसे का साधन जिससे आपके घर में पैसा आ रहा हो, right? So it refers to means through which people earn a living and support themselves and their families. In India, there are diverse livelihoods options that people engage in to meet their basic needs and improve their quality of life. In this section, we are going to study about the rural and the urban livelihoods. तो रूरल में, गांव में मेजर क्या रीजन क्या होगा जहां से पैसा आता है? कमाई का कारण कैसा होगा? कमाई का साधन क्या होगा? एग्रीकल्चर, राइट. So in rural areas, people live together, they work together, cooperate with each other, but they have different jobs of their own. So in rural, agriculture is the most important job. As I told you, major job क्या है? Agriculture है. Out of 69%, जैसे हमने कहा था कि 69% आपकी population रूरल एरियाज में रह रही है. इस 69% में जो 47% है वो स्टिल एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं. तो कितनी परसेंट है रूरल एरिया में? 69%. इस 69 का 47% किस पे डिपेंड करता है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है. सो ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, रिमेनिंग अदर जॉब्स, राइट. So we have to remember this. There are, however, other people who follow other different occupations such as, और लोग क्या करते हैं? कुछ शॉपकीपर्स होते हैं, कुछ ब्लैकस्मिथ्स होते हैं, कुछ पॉटर्स होते हैं, कुछ कारपेंटर्स हैं, कुछ वीवर्स हैं, बार्बर हैं, टेलर, ये सब जॉब्स होते हैं जिसमें वो बिजी होते हैं, राइट. अब इसको एक सेक्शन वाइज समझते हैं. एग्रीकल्चर क्या एक बैकबोन है हमारी इंडस्ट्री का. अब ये एक मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है. यहाँ पे फार्मर्स क्या करते हैं? कल्टीवेट करते हैं क्रॉप्स को, लाइफ स्टॉक को रेयर करते हैं, एंड फॉर सस्टेनेंस एंड सेल.
they utilize traditional farming method and now they have engaged themselves into modern techniques also, so that productivity बढ़ जाए. ये फार्मिंग जो है एक ऐसा साधन है जो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है और कंट्रीब्यूट्स टू नेशंस फूड सिक्योरिटी. फार्मर्स ही नहीं होंगे तो खाना नहीं मिलेगा हमें. सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब इन फार्मर्स के साथ में शॉपकीपर्स होते हैं जो बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं. तो ये क्या बेचते हैं? ये आर्टिकल्स बेचते हैं जैसे फूड आइटम्स, ग्रोसरी, स्टेशनरी, होइजरी, मेडिसिन एक्सेट्रा. तो जो डे टू डे मटेरियल है, लोग जो फार्मर्स होते हैं या लोग वहाँ पे जो रहते हैं वो इनसे पैसे देके या उधार पर सामान खरीदते हैं. सो ऑब्वियसली अगर आप उधार पे सामान लोगे तो पैसा एक्सपेंस ज्यादा पड़ेगा. देन इज ब्लैकस्मिथ. ब्लैकस्मिथ क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जनरली देयर इज वन फैमिली ऑफ अ ब्लैकस्मिथ इन ईच विलेज. ये तो होता ही होता है. इनका काम क्या करता है? ये टूल्स बनाते हैं iron K for the farming community. Now, if blacksmiths are not there, then it will be difficult for the farmers to do their work. So, he also repairs the tools and implements in return for cash or in kind payment. Members of his family help him in his work. An assistant keeps a fire. इसके जो blacksmith होता है, हर एक विलेज में blacksmith होते हैं. अकेला वो काम नहीं करता. एक इंसान यहाँ पे उसकी फैमिली से कोऑपरेट करता है क्योंकि एक असिस्टेंट होता है जो फायर को बर्न करने के लिए रख देता है in the bellows and he strikes the iron when it is hot and molds the iron in desired shapes. So this is the work done by a blacksmith. So we have agriculture, we have shopkeepers, we have blacksmith. Then is carpenter. ना carpenters जो होते हैं वो they make furniture, they make things of wood. तो ये लोग बहुत important हैं because ये हाथ से काम करते हैं. These items and implements are made by carpenter. He uses things as wood and he makes doors, windows, chairs, tables, stools, floors, cots, etc. He makes wooden toys for children, bullock carts also. So the members of his family help him. So this complete process is not done by a single person. The complete family is always supporting the carpenter. Then we have tailors, right? Tailors obviously required. We need to wear clothes, so tailors are required. So what he plays an important role. He sews clothes. What do they wear? They wear they call that undergarments like kacha, banyan, trousers, blouse, petticoat, kurta, etc. for villages. And this is done in very reasonable rates. It's not the way we pay to the tailors. They don't pay it like this. They pay very low rates to them. Then the members of this family also help him in his work. तो घर पे जो ladies हैं वो भी help कर देती हैं. बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको help करते हैं. What are the other occupations? Usually villages are of three types such as large village, middle village and small size village. जो लार्ज विलेज होते हैं उसके अंदर स्कूल्स होते हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं जो बहुत सारे टीचर्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को एम्प्लॉयमेंट दे देती हैं. जो पॉटर्स होते हैं वो अर्दन वेयर बनाते हैं विलेजेस में. कॉबलर्स जो होते हैं वो शूज को मेंट करते हैं. बार्बर्स जो होते हैं हेयर कटिंग का जॉब करते हैं. वॉशरमैन क्लॉथ धोते हैं. वीवर्स क्लॉथ को वीव करते हैं, राइट. एंड द वन वॉशरमैन दे आर वॉशिंग द बेडशीट्स एक्सेट्रा. जो पोस्टमैन होगा वो लेटर्स डिलीवर कर रहा है. चौकीदार होगा वो गार्ड कर रहा है, वॉच कर रहा है. सो ऑल दीज आर द अदर ऑक्यूपेशन. व्हाट आर द अदर ऑक्यूपेशन? वी हैव सीन टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, पॉटर्स, we have seen plumber, we have seen barber, we have seen washerman, we have seen postman and the security guard. Now, this is all about your people living in rural areas and dependent on so many different occupations for their livelihood. Now, let's come to urban areas. In urban livelihood, as in the case of rural areas, urban people also work in different fields to earn their livelihood to meet their day-to-day and future requirement. तो यहाँ पे ये जो urban वाले लोग हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं? Let's understand that. अब अर्बन एरियाज में बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी होती है. फैक्ट्री वर्कर्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स सच एज क्लर्क्स, नर्सेस, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स एंड अदर मेन पीपल हु आर इन टाउन्स एंड सिटीज. तो यहाँ पे कौन कौन होते हैं? फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे क्लर्क्स हैं, नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये सब काम करते हैं. देयर आर अदर पीपल हु फॉलो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोफेशन. इसके अलावा हॉकर्स क्या होते हैं? रेडी वाले, ठीक है. रिक्शा पुलर्स होते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स होते हैं जो आपके घर में काम करते हैं, गारमेंट मेकर्स होते हैं. तो अब हम समझते हैं डिटेल में ये हमारी कैसे है ना, हाउ डू दे पुल इन अ लॉट ऑफ मनी फॉर देमसेल्फ. फैक्ट्री वर्कर्स जो रहते हैं दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ना दे अर्न देयर लाइवलीहुड बाय वर्किंग डे एंड नाइट. दे वर्क वेरी हार्ड, दे रियली बर्न द मिडनाइट ऑयल. एंड हाउ आर दे पेड? मे बी इन मंथली और डेली. एंड दे वर्क वेरी हार्ड, very dead hard. And what do they work for? Because they can just procure the basic items like cloth, hosiery, medicines, chemical, food items, etc.
When we talk of the businessmen and the shopkeepers, they are busy. What do they sell? They sell and buy different things like milk, butter, bread, fruit, food items, vegetables, sweets, books, and home theater. There are many things which they deal in, right? Then we have teachers, we have doctors, we have lawyers, we have policemen, we have postmen, we have clerks. ये भी urban population का part है. और ये अर्बन सोसाइटी को अपने तरीके से टीचर्स पढ़ाती हैं, डॉक्टर्स आपको ट्रीट करते हैं पेशेंट को, लॉयर्स केसेस हैंडल करते हैं, पुलिसमैन आपकी लॉ एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं. तो सब लोग का अपना अपना काम है एंड दे कंट्रीब्यूट टू देयर livelihood in urban areas. In addition to the above mentioned people, there are others who live in urban areas. These include domestic workers. अब domestic servant जो आप घर में maids काम करते हैं, vegetable vendors सब्जी बेचते हैं, बैंक एम्प्लॉयज है, गारमेंट मेकर्स है, टैक्सी ड्राइवर्स हैं. जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं वो एक जगह पे फिक्स नहीं होते, they move from one place to another to supply vegetables. And as a urban people lead a comfortable life, they engage domestic servants who help them in कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग. तो आप देखते हो गए घर में जैसे मम्मी कहती है आज मेड नहीं आई, मम्मी का गुस्सा बहुत ज्यादा हाई होता है क्योंकि वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन देम, राइट? वी हैव अ फिक्स रूटीन ऑफ डूइंग आवर थिंग्स एंड इन केस दे आर एब्सेंट वी फील बैड. व्हाई? बिकॉज वी आर डिपेंडेंट on each other. So all these things, because we have a set pattern of living, so we have employed a lot of people to live a comfortable life. So these people are a large number of such other people who also form a part of urban population. It is not possible to mention them, but all of them have their own utility. Everybody in the system, be it a security guard, be it a sweeper, be it a gardener, be it your servant, domestic servant, any menial job, right, requires a person who takes care of this, and that person is very important in that system. So now we've also seen that people move from rural areas to urban areas. What are the reasons? Let's understand that. मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन. एक जगह से दूसरी जगह पे जब मूव करते हैं तो माइग्रेशन कहते हैं. 2011 के सेंसस में 31% जो टोटल पॉपुलेशन थी इंडिया की वो अर्बन एरियाज में रह रही है. मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अर्बन एरियाज आर एंगेज इन सेकेंडरी एंड टर्शरी ऑक्यूपेशन. सेकेंडरी और प्राइमरी ऑक्यूपेशन तो एग्रीकल्चर, सेकेंडरी और टर्शरी ऑक्यूपेशन में ये लोग बिजी हैं. Secondary activities of urban areas include manufacturing, processing of various products. और tertiary activities में क्या आता है? Workers working in trade, health and education sectors. Most of the secondary and tertiary activities have their base in urban areas. तो यहाँ पे हमने कहा मूवमेंट होता है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पे, उसे माइग्रेशन कहते हैं. 2011 के सेंसस में अगर हम देखें 31% पॉपुलेशन आपकी अर्बन एरिया में रही है. अब ज्यादातर लोग मूव करना चाहते हैं, बिकॉज वो क्यों उस मूव करते हैं? क्योंकि वहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी ऑक्यूपेशन अवेलेबल है. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग आता है और टर्शरी ऑक्यूपेशन में वर्कर्स हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं. Most of the secondary tertiary activities have their basis and they are all in urban areas. That is why they keep moving. So people of rural areas are migrating towards urban areas. These are the major regions. People migrating to towns or cities because of the relatively better employment opportunities. आप क्यों मूव करेंगे? अपनी जगह छोड़ के क्यों जाएंगे? आपको better opportunity मिल रही है पैसे कमाने की. In rural areas, there's less opportunities of employment, low level of income, lack of education, training facilities, lack of health and medical facilities, etc. तो वहाँ पर जो रूरल एरियाज है, जो गांव है, वहाँ पे उतनी फैसिलिटी नहीं है, ना तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, ना उनको वहाँ पे पैसे कमाने का ज़्यादा साधन है, ना उनको एजुकेशन का बहुत अच्छा स्कोप है, ना वहाँ पे मेडिकल अच्छा है, ना वहाँ पे ट्रेनिंग है, ना वहाँ पे एजुकेशन है कि हम अपने काम को कैसे बढ़ा लें. सो ऑल दिस लैक इन द रूरल एरियाज बिकॉज ऑफ विच पीपल माइग्रेट टू द अर्बन एरियाज. अर्बन लाइफ हैज इट्स ओन स्पेशल अट्रैक्शन सच एज जॉब अपॉर्चुनिटीज. अब आप अर्बन लाइफ में चलेगा, सपोज आप एक एक्स जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अब वाई पे जा रहे हैं जहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है, सो यू आर अवेलिंग इन, यू आर इकोनॉमिकली ग्रोइंग एंड बेटर लाइफ स्टाइल. सो वहाँ पे बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, बेटर कम्युनिकेशन है, रिक्रिएशन सेंटर्स है. मतलब अब आप जिस दिन छुट्टी होती है यू वांट टू एंजॉय, सो यू नीड टू हैव अ प्लेस वेयर इन यू कैन गो एंजॉय रिलैक्स. तो वहाँ पे ये पॉसिबल होता है. रेस्टोरेंट्स होते हैं, इम्प्रूव्ड एजुकेशन फैसिलिटीज है, बेटर मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज है. बट रूरल एरियाज में ये नहीं होता है. इस वजह से वो टेम्प्ट होते हैं, उनकी इच्छा करती है कि वहां पर जाएं और वहां पे सेटल हो जाएं. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय नेशनल सैंपल सर्वे, द मेन कॉज ऑफ रूरल मेल टू माइग्रेट टू अर्बन एरियाज एम्प्लॉयमेंट. तो मेजर रूरल के जो मेल हैं वो वहाँ अर्बन में क्यों जाते हैं? बिकॉज उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का साधन मिलता है. और फीमेल्स की जाती है, उनकी वेडिंग ज़्यादा अच्छी जगह पर हो जाती है. राइट नाउ हाउ इज एजुकेशन डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया? Neighborhoods typically have educational institutions such as schools and daycare centers that cater to the needs of families with children.
Education plays a crucial role in shaping individual and society. In India, education is considered fundamental right of every child. Last session में हमने पढ़ा था RTE आया था, राइट टू एजुकेशन, जिसमें हमने कहा था कि 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए. ये तो हमारी फंडामेंटल राइट हमारा लिस्टेड है. एजुकेशन एसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ. हमें एजुकेशन मिलती है तो हमारे क्या होता है, हमारा ग्रोथ होता है, हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिकली भी हम ग्रो करते हैं, बिकॉज हम केटर करते हैं, हमारे अंदर स्किल्स आ जाती हैं. तो हम स्किल्स आती है तो हम एक प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉजिटिवली सोसाइटी को. एजुकेशन से आप इम्पार्ट फील करते हो बिकॉज आप प्रॉपर डिसीजन ले सकते हो, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाती है और हार्मोनियसली, मतलब आपकी समझ बढ़ती है, सोच बढ़ती है, विजडम बढ़ता है और आप एक एनवायरनमेंट में अच्छे से रह सकते हैं. There are significant differences between rural and urban education. इंडिया में अर्बन और रूरल एरिया में जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी अलग हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी अलग हैं. However, it is important to note that these differences are dynamic and can be influenced by government policies, economic development, and social changes. Some key points differentiating rural and urban education in India are: rural education में क्या क्या challenges हैं. सबसे पहला प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाने के लिए, एक स्कूल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, वो रूरल एरिया में कम रहता है. So many rural areas face challenge in terms of basic infrastructure for education. Lack of proper school building, electricity and sanitation facilities can impact the quality of education. अब पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं, फंड्स नहीं होंगे तो अच्छी बिल्डिंग नहीं होगी, अच्छी एम्यूनिटीज नहीं होंगी, एम्यूनिटेशन नहीं, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बच्चों को जाने में प्रॉब्लम होगी. देन टीचर शॉर्टेज. ऐसी जगह पे जहाँ पे रूरल एरिया, वहाँ पे पढ़े लिखे अच्छे एजुकेटेड लोग मिलने की कम चांसेस होंगे, जिसकी वजह से जब वहाँ पे कम काम, या तो लोग कम हैं या फिर टीचर्स ऐसी जगह पर काम नहीं करना चाहते. जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वहाँ पर, दे मे बी हेजिटेंट टू वर्क इन रिमोट एरियाज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एमिनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज. Then there'll be a limited access to technology. Now here in cities we don't have any problem, we can use any technology to explore any venture, but they have a limited access to modern technology including computers and internet, which can impact the exposure to digital learning resources. While in now we can see, we may feel we should have that gratitude because we have all these things available by default. Then agricultural focus in rural areas where agriculture is a predominant occupation, there may be a tendency for education to be geared towards practical skills related to farming and traditional life. तो लोग ज़्यादातर बिकॉज एग्रीकल्चर का मेन फोकस है तो क्या पढ़ना चाहेंगे, वो अपने डोमेन को पढ़ना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने डोमेन वो ग्रो कर पाए. देन लैंग्वेज बैरियर, यहाँ पे हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, टीचर की शॉर्टेज है, लिमिटेड एक्सेस है टेक्नोलॉजी को, एग्रीकल्चर फोकस है. फिर लैंग्वेज बैरियर है, वहाँ पर सपोज एक गांव है, वहाँ पर लोकल भाषा बोली जाएगी एंड दे मे नॉट बी वेल वर्स विद एनी अदर लैंग्वेज एल्स इन दैट, because of which learning will be a hindrance. So in some cases there may be language barriers in rural areas because they have higher prevalence of local dialects and the curriculum might be in a language that is not the mother tongue of the students. Now if we see, if we are all studying in English and we can speak Hindi also, but in case we speak only the local language, then how do we study, how do we read through it, right? Then low enrollment and high dropout rates. Rural areas may experience lower enrollment rates in schools and dropout rates can be higher because of factors such as economic pressure, need of child to labor and lack of awareness about the importance of education. अब जितने स्कूल में एनरोलमेंट होते हैं, अगर ऐसे आप जाएं कभी किसी एनजीओ से एसोसिएट होना करके देखना, आई डिड इट पर्सनली, तो वहाँ पे आप उनको बहुत मुश्किल होता है ये समझाना कि आप ये छोटे मीनियल जॉब, बेगिंग वेगिंग छोड़ के आप पढ़ाई करो. अगर आप उन्हें कन्विंस भी करके उनको अच्छे काम के लिए लगा भी देते होंगे तो फिर ड्रॉप आउट होता है, वो ज्वाइन करते हैं, छोड़ देते हैं. क्यों? बिकॉज तो उनका इंटरेस्ट नहीं होता है. दूसरा, उनको लगता है कि हम पैसा कमा लें, हम जल्दी से पैसा कमा लें, और फिर घर की इकोनॉमिक कंडीशन होती है, फिर अवेयरनेस ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता है कि अभी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम एजुकेशन में ये कैसे उनको फायदा देगा. Then if we talk of urban education, this is vast difference. Like they have a better infrastructure. Now better infrastructure में क्या आता है, well maintained buildings है, एक्सेस है, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, मॉडर्न फैसिलिटीज है, सब कुछ है, कंप्यूटर लैब्स वगैरह सब कुछ है, ये सब है, तो इस करके वहाँ पे पढ़ना इजी होता है. टीचर्स बहुत क्वालिफाइड होती है बिकॉज टीचर्स क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, स्किल्ड है, तो पढ़ने वाले को भी मजा आता है, पढ़ाने वाले को मजा आता है. देन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, यहाँ पर सिटीज में, अर्बन एरियाज में आप एक्सेस कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को, जिसमें कंप्यूटर्स है, इंटरनेट है, मल्टीमीडिया है, तो इससे लर्निंग एक्सपीरियंस एनहांस होता है. देन डाइवर्स करिकुलम,
Urban schools may offer a more diverse curriculum, including a range of extracurricular activity due to availability of resources and a more cosmopolitan environment. तो बहुत diverse curriculum है, because अब अगर हम urban areas की बात करते हैं, they want your holistic grooming to be done, because they don't have to condition your parents to tell them that no, we are doing this for reason, right? Your parents are very inquisitive to make their children be groomed in the best fashion. तो वो क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं वहां पे, वो ये नहीं कर रहे कि मेरे बच्चे को आपने इतनी देर क्यों बिठाया, आपने ये क्यों सिखाया, बिकॉज दे वांट दिस, दे वांट अ होलिस्टिक ग्रूमिंग टू बी डन, विच इज डन इन urban areas. Then language of instruction in urban areas, the medium of instruction is often in a language that is more widely used and understood, such as English. तो modern areas में हम English use करते हैं. अब this can be advantageous for students in terms of higher career opportunities. Now if you learn one main language, English, obviously then it is easy for you to communicate, and for further opportunity also you need at least this language as a medium to grow ahead. देन हायर एनरोलमेंट रेट्स अर्बन एरियाज में. हायर एनरोलमेंट रेट क्यों होता है? बिकॉज लोग जो है सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स पर एक तो डिपेंड नहीं होते हैं, दे आर प्राइवेट स्कूल्स ऑल्सो. then they want to complete their education because the knowledge is more. Nobody will know, even a maid will send her kids regularly to school because awareness is more, and she will not make her child do menial jobs, rather she would expect her to study. Then efforts are being made by government, although government नहीं चाहती कि रूरल एरियाज में भी इतने गैप्स उनको ब्रिज करिए, बिकॉज वो बहुत सारे स्कीम्स लेके आते हैं बिटवीन रूरल एंड अर्बन एजुकेशन इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर. क्या करिए गवर्नमेंट? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है, टीचर और शॉर्टेज को क्लियर करिए, डिजिटल लिटरेसी बढ़ा रही है, पॉलिसीज लेके आ रही है कि बच्चे जो है एनरोल करें और ड्रॉप आउट ना हो. उनको ना ल्योर करने के लिए उनको स्कूल में ही मील्स भी देती हैं, वेरी अट्रैक्टिव मील्स, की उनको एक लालच हो कि हमें खाना मिलेगा और हम वहाँ पे रेगुलर जाए. Right. Now this was the difference between rural and urban education. Now let's come to type of houses, which is different in both the areas, which you studied in class 5 also. Let's again go through it. Houses are essential for shelter. It provides a sense of security, comfort and belonging. अगर houses नहीं होंगे तो ये सब चीजें हमें नहीं मिल पाएंगी. Throughout history, humans have developed various types of houses based on their geographical location, climate, resources, cultural preferences. तो लोगों ने घर कैसे बनाए थे? आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट कैसा है, रिसोर्सेज कैसे हैं और आपकी कल्चरल प्रेफरेंसेस कैसे हैं. इस सेक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे कि रूरल और अर्बन सोसाइटी में कैसे घर होते हैं और क्या यूनिक फीचर्स होते हैं उनके. The type of houses in rural and urban societies often differ due to various factors including lifestyle के according आपका differ करेगा, economic activities के according, available resources के according, cultural preferences के according. Then let's learn about it. Rural houses, traditional and vernacular architecture. Rural houses often have houses that reflect traditional and vernacular architectural स्टाइल. जैसे ये वाला एक घर बना हुआ है, ये जो स्टाइल्स होते हैं ये लोकल मटेरियल जो अवेलेबल है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ का कल्चर प्रैक्टिस क्या है, उस पर डिपेंड करता है. अब कौन से घर होते हैं? एक सिंगल फैमिली होम है, ये देखा है आपको सिंगल फैमिली होम. हाउसेज इन रूरल एरियाज आर टिपिकली स्टैंड अलोन स्ट्रक्चर. ये कैसे होते हैं? सिंगल फैमिली होम स्टैंड अलोन स्ट्रक्चर्स होते हैं और दे आर वेरी कॉमन. इसमें बनते किससे हैं घर? हम क्या किस चीज से बनाते हैं? हम बनाते हैं इसे क्या क्या यूज करते हैं? वुड, थैच, मड, बैम्बू यूज करते हैं. These homes often have larger plots of land allowing for agriculture activities और keeping of life. अब इनमें जगह बहुत ज्यादा होती है. क्यों? क्योंकि इन्होंने उसी जगह पे, हम कहते हैं वाटर डोमेस्टिक एनिमल्स, एनिमल जो आप फार्म में रखते हो डोमेस्टिक एनिमल, इनके पास कोई फार्म नहीं होता है, इनके पास बड़ा सा घर होता है, बहुत बड़ा सा जगह होती है जहाँ पे उन एनिमल्स को भी दे कीप देम विद देम, राइट. देन मटीरियल, अब यहाँ पे जो सिंगल फैमिली होम्स हैं ये किस चीज से बने होते हैं? वुड, थैच, मड, बैम्बू और स्टोन. और हम ये मटेरियल कैसे चूज करते हैं? ऑन बेसिस ऑन द एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी. Then is spacious surrounding. Rural houses often have more space around them, allowing for agriculture or backyard activities. This layout is influenced by the need for farming or gardening space. So ये layout कैसे बनता है कि यहाँ पे हम फार्मिंग और गार्डनिंग भी कर पाए. लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, एक्सेस की बात करें, मेजर एक्सेस जैसे एक बड़ी अच्छी सी रोड्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी हो, आपका गैस हो, ठीक है, अफेक्टिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेज. तो ये चीजें बहुत लिमिटेड है, ये उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपको अर्बन एरियाज में मिलते हैं. बट अगर हम बात करते हैं अर्बन एरियाज में, एक डाइवर्स आर्किटेक्चर स्टाइल है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन. आपने घर बनवाना, आप एक आर्किटेक्चर हायर करो, आपको बेस्ट प्लान्स देगा आपका घर बनाने के लिए, बिकॉज उनके पास बहुत नॉलेज होती है. एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉडर्न ट्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन एंड डाइवर्स कल्चरल इन्फ्लुएंसेस. तो अगर हम बात करते हैं अर्बन एरियाज में, आते हैं आपको ये स्काई स्क्रेपर्स दिखते हैं ना, गगनचुंबी हम बांटते हैं, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं. क्यों?
यहाँ पर ये अपार्टमेंट जैसे होते हैं, ये बहुत कमोड, मतलब यहाँ पे क्या होता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अपार्टमेंट जो होते हैं ये कॉमन है। यहाँ पर कम जगह में बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट करने के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है। फिर इनका जो डिजाइन होता है कम्पैक्ट होता है, बिकॉज हमें पता होता है कि एक लिमिटेड स्पेस है हमारे पास। कम्पैक्ट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ द लैंड इज की कंसिडरेशन ड्यू टू हाई डिमांड फॉर अर्बन रियल एस्टेट। तो एक जगह वहां पे महंगी है, उस जगह को प्रॉपर यूटिलाइज करना है, तो कम्पैक्ट डिजाइन होता है। देन वी यूज मॉडर्न मटेरियल्स, यहाँ पे हमने देखा था सिंगल फैमिली हाउसेज हैं विच रिक्वायर मटेरियल लाइक वुड, थैच, मड, बैम्बू। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे होंगे, मटेरियल यूज कर रहे होंगे कंक्रीट, स्टील एंड ग्लास, एंड दिस मटेरियल कैन बी चूजन with because of the durability and speed at which buildings be constructed. When we talk of infrastructure, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, आपको एक बेटर रोड मिलेगी, आपको बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, आपको बेटर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, वाटर सप्लाई मिलेगी। तो ये सब चीजें डिपेंड करता है। तो आप घर देखने जाते हो, सपोज आप एक रेडीमेड रेडी टू मूव घर में जा रहे हो, तो ये सब आपको सेट मिलेगा, आपको घर पूरा बना हुआ मिलेगा, फर्नीचर मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी पूरी है, प्लम्बिंग का काम हुआ है, सब कुछ रेडी है। Mixed use development, urban areas often use mixed use developments where residential, commercial, and recreational spaces coexist in close proximity. This lead to a variety of housing type from high-rise apartment to townhouses. तो मिक्स यूज डेवलपमेंट में आप जाओगे ना, सपोज आपको नया घर लेना है, सपोज आपको एक अपार्टमेंट लेना है जैसे 3 BHK और 4 BHK, और आपको सब कुछ सारी फैसिलिटीज चाहिए कि उसमें जिम भी हो, उसमें पार्क भी हो, उसमें केमिस्ट शॉप भी हो, उसमें सारे फूड आउटलेट्स भी हो, तो वो चीज आपको मिक्स यूज डेवलपमेंट में मिल जाती है। Now let's come to another very interesting topic, that is diversity of community. हमारे यहाँ पे India is as I told you, India is a salad bowl of color, culture and craft. अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग उनकी, हम लोग बहुत डाइवर्स वे में रहते हैं. They are myriad of communities which are existing here. अब they are different in terms of language, religion, custom, tradition and social practices. इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डाइवर्स कम्युनिटीज है इंडिया में, क्या क्या उनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो कैसे हमारी कंट्री को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब लिंग्विस्टिक होता है लैंग्वेज, ठीक है, लिंग्विस्टिक कलाइडोस्कोप विद न्यूमरस लैंग्वेजेस स्पोकन अक्रॉस द कंट्री। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं। हम बात करें इंडो आर्यन लैंग्वेज, हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती एंड मेनी अदर लैंग्वेज बिलोंग टू इंडो आर्यन लैंग्वेज स्पोकन इन डिफरेंट रीजन इन इंडिया। द्रविडियन लैंग्वेज में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये जो है साउथ इंडिया में बोली जाती है। साउथ इंडिया में कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, जैसे बोडो, मणिपुरी, तिब्बतन, ये यहाँ पे हम बोली जाती हैं इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, राइट। सो ये सब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोली जाती हैं। If we talk of religious community, तो India is a land to major religions, basically Hindu community major religious community है इंडिया में। ये they follows various sect, tradition and practices within the border Hindu, broader your Hindu faith, and you've seen this. Then we have a Muslim community also. Muslims also constitute a significant religious community in India, practicing Islam and following diverse cultural traditions. Sikh community, Sikhs जो है, they are major, found everywhere, but then in the state of Punjab, they have their distinct culture, they have their distinct religious community known for the adherence to the teachings of Guru Nanak Dev Ji. So they follow to whatever has been taught by the first Guru, Guru Nanak Dev Ji. Then we have Christian community who have a significant presence in India with different denomination and tradition across various regions. So abhi in case we see that on 25th December, it is not only celebrated by 25th December. Christmas is not celebrated only by Christian community. The entire India celebrates, right? Then we have Jain community. Now Jains follow the principle of non-violence as told by their gurus, truth and non-possessiveness. They have their own distinct religious community and contribute to in society in various ways. एंड बिलीव यू मी, अगर आप एक्सप्लोर करेंगे, अमेरिका में सबसे ज़्यादा अमीर जैन्स हैं, राइट। Buddhist community, Buddhists inspired by teachings of Gautam Buddha. They have their distinct community and monastic tradition. We are going to study it further कि ये सारी communities कैसे develop हुई थी, आगे ये इसका कैसे इसका प्रचार हुआ और ये आगे कैसे चली। Then is the tribal community. हम ये तो हमने पढ़ा हुआ है, it's easy. Now let's understand a very interesting fact about tribal communities. अब इंडिया में ना बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनके क्या आइडेंटिटीज हैं, कस्टम्स है, नॉलेज है, समझते हैं। संथाल कम्युनिटी है जो कि लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है इंडिया में। ये वाइब्रेंट डांस फॉर्म के लिए फेमस है, म्यूजिक और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए। गोंड कम्युनिटी, दे आर फाउंड इन सेंट्रल इंडिया एंड आर नोन फॉर देयर आर्ट, पेंटिंग्स एंड क्लोज कनेक्शन विद नेचर। फिर एक भील कम्युनिटी है। भील कम्युनिटी क्या कहाँ रहते हैं, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में रहते हैं। दे हैव रिच कल्चर हेरिटेज एंड हिस्ट्री ऑफ वॉरियर ट्रेडिशन। फिर मीजो जो कम्युनिटी है मिजोरम में,
दे हैव डिस्टिंक्ट कस्टम, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशनल वीविंग प्रैक्टिसेस। इसके अलावा हम पढ़ेंगे एथनिक और रिलीजन कम्युनिटी के बारे में। वी हैव बंगाली कम्युनिटी। बंगाली कम्युनिटी प्राइमरली वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में रिसाइड करते हैं। इनका लिटरली ना बहुत आर्टिस्टिक बेंट होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो सिंगर्स होते हैं, कंपोजर्स होते हैं। Then we have Marathi community. The Marathi community in Maharashtra has a vibrant cultural heritage, including literature, theatre, and festivals like Ganesh Chaturthi. ये लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? गणेश चतुर्थी। तमिल कम्युनिटी जो रहती है वो बेसिकली तमिलनाडु में है, और ये क्लासिकल म्यूजिक और डांस फॉर्म्स जैसे भरतनाट्यम है, ये लोग उसमें बहुत माहिर होते हैं। फिर एसमीज होते हैं, एसमीज आसाम में होते हैं, इनकी कल्चरल आइडेंटिटी होती है, ये बिहू डांस के लिए बहुत फेमस होते हैं, इनका ट्रेडिशनल क्राफ्ट बहुत फेमस होता है। और एसमीज लिटरेचर, एवरी सिटीजन नीड्स टू टेक पार्ट इन द एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन अ फैमिलीज, अ नेबरहुड, अ स्कूल। तो हर एक सिटीजन को ये पार्टिसिपेट करना पड़ता है सोसाइटी में। सिविल लाइफ इज नॉट पॉसिबल, तो सिविल लाइफ तो पॉसिबल है ही नहीं अगर हम सब पार्टिसिपेट ना, अगर कॉपरेट नहीं करेंगे। हम कॉपरेट करेंगे तो हमारी कंट्री का प्रोग्रेस होगा, सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। देन कहीं पे भी रहें, चाहे अर्बन या रूरल एरियाज में, हमें लगेगा हर एक इंसान की इंपॉर्टेंस है, और वो हर एक इंसान का इंपॉर्टेंस है किसी भी काम करने में, एंड दे आर डूइंग द रिस्पेक्टिव जॉब टू मेक द एंड्स मीट। now we also are going to study about clothing in India. बहुत मजा आएगा. You can also explore ना whenever you go out to a different place ना, try ना draping their clothes, right, which is different. क्लोथिंग से क्या होता है, आपकी आइडेंटिटी पता चलती है, सेल्फ एक्सप्रेशन पता चलता है। इंडिया में क्लोथिंग जो है एक रिच टिपेस्ट्री है डाइवर्स ट्रेडिशन का, स्टाइल और फैब्रिक्स का। अब हम पढ़ेंगे क्या क्या क्लोथिंग वेरिएशंस हैं। ट्रेडिशनल अटायर में इंडिया में इट वेरीज अक्रॉस द रीजन, रिफ्लेक्टिंग द डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। Here are some notable example. The sari is a versatile and iconic Indian garment worn by women. एक iconic garment जो इंडियन women पहनती है, स्पेशली है ना, मम्मी को भी आपने देखा होगा, अपनी कोई स्पेशल डे होता है तो मम्मा साड़ी पहनती है। It is a long piece of fabric draped around the body with variations in draping style. अब वो स्टाइल अलग हो सकता है. There's a lady who teaches 300 styles of wearing one single sari. Right? Fabrics and embellishment based on regional tradition. Then salwar kameez. The salwar kameez is a popular outfit for women, especially in North India. It consists of a long tunic. कमीज होती है, उसमें लूज फिटिंग पैंट्स, उसे सलवार कहते हैं, and दुपट्टा. Then we have dhoti and lungi. Dhoti is a traditional garment that is worn by men, consisting of a long piece of cloth wrapped around the waist and the legs. So you have seen this dhoti. Lungi is similar garment which is a lower garment in South India. Then if we talk about Ghagra Choli and Lehenga, traditional outfit for women in Rajasthan and other parts of India. It consists of long flared skirt, Ghagra, paired with a blouse and a dupatta. Now this is what we wear in India. Now रीजन क्लोथिंग स्टाइल में सपोज हम एक एक रीजन वाइज जाएं, स्टेट वाइज जाएं, तो वहाँ पे भी डिफरेंस है। पंजाब में पंजाबी मेन दे ऑफन वेयर कुर्ता पजामा, वाइल वीमेन वेयर वाइब्रेंट सलवार कमीज विद फुलकारी एम्ब्रॉयडरी एंड वाइब्रेंट दुपट्टा। कश्मीर की तरफ चले जाएं, कश्मीरीज क्या पहनते हैं, फिरन पहनते हैं, एक लूज लॉन्ग गाउन लाइक गारमेंट होता है, ट्रेडिशनल पश्मीना शॉल्स यूज करते हैं जो आपकी मम्मी को बहुत पसंद है। सर्दी होती है तो मम्मी को लगता है कि हमारे पास 5-6 पश्मीना शॉल्स हैं, बिकॉज वो बहुत पतली होती हैं, बहुत वार्म होती है और बहुत सुंदर होती हैं, और उसके अंदर इंट्रिकेट बहुत अच्छे से काम होता है एम्ब्रॉयडरी का। एसमीज क्लॉथिंग की बात करें तो वो लोग महल का चादर पहनते हैं फॉर वेमेन, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पीस गारमेंट ड्रेप्ड अराउंड द बॉडी एंड द धोती कुर्ता फॉर मेन। महाराष्ट्र की बात करें तो नौवारी साड़ी पहनती हैं लेडीज, जो उन्हें बहुत पसंद है, आपने भी पहना होगी कभी किसी डांस फंक्शन में। दैट इज ड्रेप्ड डिफरेंटली दैन अ रेगुलर साड़ी, एंड देन मेन वेयर धोती एंड कुर्ता अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल कैप कॉल्ड फेटा। राइट, नाउ दिस इज व्हाट दे वेयर, डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट क्लोथिंग। ना इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न ट्रेंड, अब टाइम के साथ इंडियन क्लोथिंग और फैशन के साथ बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। फ्यूजन वेयर पहनते हैं, इंडो वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, तो आपको कहीं जाना तो आपने ट्रेडिशनल पहना, तो आप एकदम बेसिक ट्रेडिशनल ना पहन के आप कहते हो मेरे को तो फ्यूजन कपड़े चाहिए, सो दैट आई कैन लुक ट्रेंडी ऑल्सो, आई कैन लुक स्मार्ट ऑल्सो, और मैं ट्रेडिशनल भी लगना चाहता हूँ। So India is known for its rich culture. Now we've studied about clothing. Now let's come to festivals. हम कौन कौन से फेस्टिवल कौन कौन से पर्टिकुलर स्टेट में मनाते हैं ये समझते हैं। तो इंडिया में बहुत कल्चरल रिलीजियस डाइवर्सिटी है, इस करके हमारे पास बहुत सारे फेस्टिवल थ्रू आउट द कंट्री हम मनाते हैं, और हर एक फेस्टिवल के यूनिक कस्टम है, रिचुअल्स और सिग्निफिकेंस है। लेट्स स्टडी दैट। नॉर्थ इंडिया में हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, बहुत एक्सूबरेंस के साथ मनाते हैं, बहुत मजे से मनाते हैं। दिवाली में हम दिए जलाते हैं, क्रैकर्स बर्न करते हैं, एक दूसरे को स्वीट्स बांटते हैं, और होली में वी स्मेयर गुलाल ऑन ईच अदर फेसेस, वी प्ले विद वाटर बलून्स, इट्स अ जॉयफुल फेस्टिवल। साउथ इंडिया में हम पोंगल, मकर संक्रांति और ओणम मनाते हैं। पोंगल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो जैसे यहाँ बैसाखी होता है ना, वहाँ पोंगल होता है।
where a special dish called Pongal is prepared. And Oman is a harvest festival in Kerala with elaborate floral decoration, boat races and traditional dance. ईस्ट इंडिया में हम फेस्टिवल मनाते हैं दुर्गा पूजा और रथ यात्रा। दुर्गा पूजा स्पेशली जो है ये प्रोमिनेंट है वेस्ट बंगाल में, इन्वॉल्व्स इलेबोरेट डेकोरेशन, कल्चरल इवेंट्स एंड ग्रैंड प्रोसेशन। रथ यात्रा जो होता है वो पूरी उड़ीसा में मनाते हैं, इसमें बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं एंड ऑफ डीटीज ऑन चैरियट्स। ठीक है, वेस्ट इंडिया में गणेश चतुर्थी मनाती है। अगर हम बात करें मुंबई में बहुत अच्छे से, यू शुड गो देयर एंड एक्सपीरियंस हाउ दे सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी। बहुत अच्छे से प्यार से मनाते हैं, गणेश जी की स्थापना करते हैं, प्रोसेशन निकालते हैं, फिर वापस में उनके विसर्जन करते हैं, विसर्जन करते हैं पानी में। और अब लोग और सेंसिटिव हो गए हैं तो वो ऑर्गेनिक आइडल्स लेते हैं कि उससे हमारे बीचेस या हमारे वाटर बॉडीज पोल्यूट ना हो, राइट। और अगर हम बात करते हैं गुजरात में, तो नवरात्रि डांडिया बहुत फेमस है वहाँ पे, और इसमें बहुत सारे ट्रेडिशनल डांसेस होते हैं, बहुत बहुत फन होता है। सो इट इज रियली ना सेलिब्रेटेड विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्सुबरेंस। देन इफ वी टॉक ऑफ सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे खजुराहो डांस फेस्टिवल है जिसमें क्लासिकल डांस फॉर्म्स होते हैं ऑफ द खजुराहो टेम्पल्स इन मध्य प्रदेश। बस्तर दशहरा एक बहुत यूनिक फेस्टिवल है जो कि छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है विद ट्रेडिशनल डांसेस एंड रिचुअल। देन वी टॉक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बिहू मनाते हैं आसाम में, इसमें असमीज न्यू ईयर होता है जिसमें ट्रेडिशनल डांस होता है, म्यूजिक होता है, फीस्टिंग होता है, खाना अच्छा खाया जाता है। एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है नागालैंड में जिसमें डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज दिखाया जाता है उस स्टेट का। हिमालयन रीजन की बात करें तो बहुत ब्यूटीफुल मैजेस्टिक ब्यूटी के लिए माना जाता है और ब्यूटीफुल लैंडस्केप के लिए माना जाता है। तो लद्दाख की बात करें तो लोसर एक तिब्बतियन न्यू ईयर कितना मनाया जाता है और बहुत वाइब्रेंसी से मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में इज अ ग्रैंड ओकेजन दैट शोकेसेस ट्रेडिशनल मास डांसेस। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मास डांस होते हैं एंड कल्चरल इवेंट्स कैप्टिवेटिंग द हार्ट्स ऑफ ऑल हु अटेंड। एंड अगर हम बात करें अंडमान निकोबार आइलैंड की, तो यहाँ पे इट्स अ ट्रॉपिकल पैराडाइज ऑफरिंग स्टनिंग बीचेस, वेरी लश ग्रीन एनवायरनमेंट। तो यहाँ आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल होता है जो एक कलरफुल इवेंट होता है दैट हाईलाइट्स द यूनिक चार्म ऑफ द आइलैंड्स एंड अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस द रिच कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ द आइलैंड्स विद ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस, एग्जीक्यूटिव हैंडीक्राफ्ट, डिलेक्टेबल cuisine विद टैंटलाइजर टेस्ट बड्स। तो ऐसा होता है जो आप है ना दैट विल इनहैंस योर हंगर पैक्स। ऐसा खाना होता है कि आपका दिल करता है आप खाते ही रह जाओ। Then these examples are snapshot and each region has numerous local and community specific। ये तो बस थोड़े से ही हैं, इसके अलावा बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो उस जगह पर मनाए जाते हैं। ये जो फेस्टिवल्स होते हैं they blend religious, cultural, historical elements creating a mosaic of celebration that make India a vibrant and diverse country। तो आपके अभी फ्रेंड्स अगर किसी और स्टेट में रह रहे हैं, जब भी फेस्टिवल हो कोई वहाँ का स्पेसिफिक, go there, experience it, enjoy। So now let's understand, after festivals, let's understand the interdependence of people in the locality। हमारे लोगों का interdependence कैसा है? Our localities are not just random collection of people and buildings, they are interconnected communities जहाँ पे एक दूसरे पर हम rely करते हैं कुछ needs और services के लिए। इस section में वो सब हम पढ़ेंगे। Now how do they depend on each other? इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, पैसे के लिए। मैं एक काम कर रही हूँ, मैं एक काम कर रही हूँ, मेरे को पैसा मिल रहा है, मैं जो काम कर रही हूँ उससे दूसरे का फायदा हो रहा है, उससे दूसरे तरीके से पैसा मिल रहा है। सो देयर इज अ लिंक ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। एक वेब है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का दैट बाइंड्स इंडिविजुअल टुगेदर। पीपल एंगेज इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस एंड बिजनेसेस प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट केटर टू इकोनॉमिक टू द नीड्स ऑफ अदर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लोकल मार्केट है, फार्मर्स ने क्रॉप्स उगाए, ठीक है, ये लोकल मार्केट में बेचे गए, शॉपकीपर्स इसे परचेज किया और इसको एक कम्युनिटी में आगे बेचा। तो एक कांस्टेंट सप्लाई है आपका प्रोडक्शन का एंड सेलिंग का। फिर लोकल बिजनेसमैन है, जैसे ग्रोसरी स्टोर है, रेस्टोरेंट्स हैं, रिपेयर शॉप्स है, इन्होंने एसेंशियल सर्विसेज दी, प्रोडक्ट्स दिए रेजिडेंट्स को, उनकी डेली नीड्स को हुई। फिर इंडिविजुअल्स इन द लोकेलिटी वर्क इन डिफरेंट प्रोफेशन सच एज टीचर्स, डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स एंड आर्टिशियन। हर एक प्रोफेशन जो है वो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए डिपेंडेंट है। तो एक प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन के ऊपर निर्भर है और उसे प्रमोट करता है। सो लोकल मार्केट, लोकल बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, they all help in they are interdependent, they all help in building that economic cycle। then is social interdependence। social interdependence का मतलब है कि reliance on one another for emotional support, cooperation and well-being। तो social interdependence का मतलब कि हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, किसके लिए? सपोर्ट के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए, cooperation, well-being में। In a locality, people come together for various social activities and to address common concerns। Examples, community gatherings, हम कुछ इवेंट बना रहे हैं, साथ में एक साथ आए, हमने मजा किया, साथ में मस्ती किया, हमें एज अ फैमिली लगता है, इससे सोशल कनेक्शन बढ़ते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंग बढ़ता है।
कम्युनिटी सर्विस, सपोज लोकल रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने कम्युनिटी सर्विस में इनिशिएटिव लिया कि चलो हम मिलके क्लीनिंग ड्राइव करें, या कोई ट्री प्लांटेशन ड्राइव करें, या हम कुछ भी ना फिलांथ्रोपिक डिवाइस करें, या कोई अवेयरनेस कैंपेन करें, तो एक कम्युनिटी सर्विस हो गया। फिर उसके अलावा म्यूचुअल सपोर्ट, कभी भी कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, इमरजेंसी आ जाती है, तो सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं इन टाइम्स ऑफ नीड। जब अब कोरोना आया था, जब हमने देखा जब ऐसा प्रॉब्लम था, वी वर ऑल cooped up inside when we were told that let's do the we let's be together and feel together. We all were sitting in a respective house, हम लूडो खेल रहे थे, हम कोई गेम खेल रहे थे साथ में मिलके, तो वो एक सेंस देता है कि हम अकेले नहीं है, हमारे साथ पूरा परिवार है। Right, so this was all about the chapter. Let's immediately come to the question answer. What is the primary occupation for a significant portion of urban population in India? तो primary occupation जो है वो urban population में हमारा primary occupation क्या है? वो primary occupation हमारा है business, because हम यहाँ बात करें urban population में, not talking of the we are not talking of rural areas, right? Then which factor is the cause of migration from rural to urban areas in India? People migrate from rural to urban areas because of lack of education training facility, excessive job opportunities in rural areas, overwhelming amenities in rural areas, limited access to technology in urban areas, so lack of education and training facility. Then what is common feature of urban houses in comparison to rural houses? क्या common feature है urban houses में? Diverse architecture style, traditional vernacular approach, limited spatial utilization, use of locally available materials. तो इसमें क्या फीचर है? यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हमारे पास कॉमन फीचर जो रूरल एरियाज में नहीं है वो है डाइवर्स आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। देन विच रीजन इज नोन फॉर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स लाइक दुर्गा पूजा? दुर्गा पूजा हम कहाँ यूज करते हैं? हम ईस्ट इंडिया में यूज करते हैं। What is the significance of sari in Indian traditional attire? Men's traditional garment, women traditional garment, religious attire or winter clothing? So it is women's traditional garment. Then let's write true. For safety is not a crucial aspect in any neighborhood. False. Rural areas in India are characterized by high prevalence of local dialects, making challenging for students to understand the curriculum. They are not characterized. This is not possible. Urban areas generally experience higher dropout rates. No, they don't have that dropout rates. Tribal communities in India are known for adopting modern lifestyles and abandoning their traditional culture. No, they'll still stick to whatever they are doing. Urban areas in India generally face challenges in terms of basic infrastructure for education. No, this is one done by rural areas. Festivals in India often blend religious, cultural and historical elements, creating mosaic of celebration. Yes. Now, one key challenge faced by rural areas in terms of education and infrastructure, the major problem faced by rural areas is the infrastructure, wherein there's lack of funds. Because of lack of funds, proper electricity, proper water, proper roads, proper sanitation is not available, which actually prevents students from going to school. Name to profession community found in urban areas that contribute to the progress of society. The major people who contribute to society are major two: teachers, or you can talk of doctors. Then describe the economic independence in a locality with example. The economic interdependence in a locality is because in a society, we do a lot of tasks. There are local markets. For example, the local markets give you food. The farmers produce the food. That food is then procured by people. It is sold in a community. Then we have the basic people who work for us and provide us with things of need, which gives them livelihood, and so it goes on. Name to the Dravidian language spoken in South India: Telugu and Tamil. Now, the answers in detail. Discuss the factors that contribute to people migrating from rural to urban areas. The major factors that migrate the people from rural to urban areas is A, the economic challenges, which are the economic challenges in rural areas are too big, because they do not have a lot of job opportunities, because of which they want to transfer their base location to urban city, and then they have a better lifestyle, they have better education, then they have better knowledge, they have better training in urban areas as compared to rural areas. Compare the contrast the types of houses in rural and urban society considering their architecture, material and infrastructure. There's a difference, there's a lot of difference in the rural and the urban societies as compared to the architecture, material and infrastructure.
In rural areas, we have single stand power apartments, which are huge, which are big, because they have to support their livestock also. But the material used is the basic material available there, that is the mud, straw, bamboo, thatch. And in these places, the houses, they do not use strong materials, and they can be accustomed to a lot of major natural calamity. But in if we and places here, they are not these skyscrapers, they are simple houses. And the materials used, I've told you, the infrastructure is also not diverse, they use the basic materials to build it. If we compare to urban areas have high and huge skyscrapers, wherein there is a rich architectural design because of the availability of things. They use steel, iron, and they use concrete material to build their houses. And if the infrastructure is concerned, the infrastructure is very strong because they have paved roads, they have great electricity, they have great pipelines, they have water pipelines, they have pipelines for your gas also. So everything is fixed in urban, while these facilities are lacking in your rural areas. Explain the significance of clothing in Indian culture considering both traditional tie and modern trends. In India, we have vibrancy of attires available in different parts of the of our states, and we dress up according to our taste, our particular area we live in, the culture we follow. For example, people living in Punjab would definitely go for, the male will go for kurta pajama, and the female will go for salwar kameez and vibrant, dupattas of fulkari. People living in South India will go for clothes like dhoti. People living in Mumbai may go for Novri saris, and everybody has a unique style of draping it. But because of the fashion trends emerging, people really want to keep themselves intact to the fashion trends. So they would love to go for fusion wear, wherein it's a blend of traditional attire with your clothes which reflect your current vibrant fashion. Discuss the role of social interdependence in locality during times of crisis, providing example. There's a great role of the community. It helps us to be socially interdependent. Why? Because it provides us emotional relief. It provides us a sense of belonging. In terms of crisis like a natural disaster, people all work together for the better cause and help everybody come out of the stress, anxiety, and the issue they are in. So this is how they help each other. This was all about the complete chapter. I hope you've got it well. If you still have doubts, you can touch base with us. Happy learning.